Assalamu alaikum everybody. Today our group is going to present about the topic of pneumonia. The assignment is given to us by Ma'am Annie. You are now able to see the names along with the topics on your screens, so you may know which topic is presented by whom. Today we shall try to understand about pneumonia, the types of pneumonia, its pathophysiology, signs and symptoms, causes of pneumonia, risk factors, complications, nursing and medical management, and preventions from pneumonia. Overall, we will go through about pneumonia in detail. Hopefully by the end of this presentation, we'll be able to learn it. Let's get started in understanding what pneumonia actually is. Pneumonia is an inflammatory process of lung parenchyma, यानी कि हमारे जो बॉडी की एबिलिटी है किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की, जो कि लंग पेरेन्काइमा यानी कि लंग का वो पार्ट जो हमारे एयर ट्रांसफ़र में या गैसियस एक्सचेंज में हमें हेल्प करता है, जिसमें एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल शामिल है। तो बेसिकली ये इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हमारे लंग पेरेन्काइमा का है, जिसमें फ्लूइड या पस फॉर्मेशन हो जाती है। इट इज़ जनरली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। अगर हम उसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पे आए तो उसमें लोबर नमूनिया आता है, जो कि नॉन सेगमेंटल नमूनिया भी कहलाता है, जिसमें एक बड़ा पार्ट या फिर पूरा जो लंग है वो इन्फेक्टेड होता है, उसमें फ्लूइड या पस की फॉर्मेशन हो जाती है। ब्रोंको नमूनिया आता है, जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है एंड देन वो पूरे एल्वियोलाइज में स्प्रेड हो जाता है। इंटरस्टिशियल नमूनिया आता है, जिसमें एल्वियोलर वॉल्स मेनली इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम जनरलाइज क्लासिफिकेशन देखें नमूनिया की, तो उसमें हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड आता है, जिसको हम कैप कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड हैप, देन वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया आता है, जिसको हम वैप का नाम देते हैं, एंड एस्पिरेट। Causes of pneumonia. Pneumonia causing microbes. As well as we all knows that pneumonia caused by viruses, bacteria and fungi. First we talk about virus. Influenza virus, another name is flu. Then bacteria. There are 30 types of bacteria that are cause pneumonia, but most common types are Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, Legionella pneumophila. They have no cell wall and causing atypical or walking pneumonia. Then we talk about fungi. It is rare, but 4 types of fungi are responsible to cause pneumonia. Coccidiomycosis. They are found in California and Southwest. Histoplasmosis. They are found in Ohio and Mississippi River Valley. Blastomycosis, they found in East or East. Second risk factor of pneumonia in adult: pre-existing lung disease, neurological disease, renal or cardiac disease. This type of people having very low immunity, so they get pneumonia very easily. Other risk factors: influenza and other viral infections, alcoholic cirrhosis, smokers, and previous episode of pneumonia. These are the causes and risk factors of pneumonia. Now I'll call my partner Seher to explain signs and symptoms of pneumonia. Thank you, Saharish. Now I am sharing information about signs and symptoms of pneumonia. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन एंड सिम्टम्स होते क्या हैं। साइंस वो होते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, और सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट्स हमें बताता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी साइंस ऑफ पनमोनिया। साइन में सबसे पहला साइन है फीवर। फीवर में हमारे पास है हाइपरेक्सिया और हाइपरपरेक्सिया, मतलब बुखार 102 या 103 रहता है। सेकंड साइन है हमारे पास चिल्स। चिल्स मतलब सर्दी लगना या ठंड लगना।
तीसरा साइन है हमारे पास SOB या डिस्निया, मतलब सांस लेने में दुश्वारी। फोर्थ साइन है हमारे पास चेस्ट पेन या चेस्ट टाइटनेस, मतलब सीने में दर्द होना या सीने में भारीपन महसूस होना। ये थे साइंस ऑफ नमूनिया। अब सिम्टम्स ऑफ नमूनिया। सिम्टम में हमारे पास पहला सिम्टम है हेडेक, दूसरा है लॉस ऑफ एपेटाइट, तीसरा सिम्टम है हमारे पास मसल पेन, चौथा है वीकनेस, मतलब कि पेशेंट हमें कंप्लेन कर रहा होता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, या उसको भूख नहीं लग रही, या उसके पट्टों में दर्द या खिंचाव है, या उसको कमज़ोरी या थकावट हो रही है। सो ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ नमूनिया। अब मैं अपनी पार्टनर शाजिया को इनवाइट कर रही हूँ कि वो आकर लैब्स इन्वेस्टिगेशंस और सर्जिकल इंटरवेंशंस ऑफ नमूनिया आकर बताएं। नमूनिया की लैब्स की डिटेल के बारे में बताएंगे। नमूनिया की लैब्स में सबसे इम्पोर्टेंट चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे, उसके बाद सिटी स्किन और CBC ब्लड टेस्ट कराएंगे, स्पूटम कल्चर कराएंगे, ब्रोंकोस्कोपी कराएंगे और ABGs वगैरह कराएंगे। अब इनकी डिटेल के बारे में इनको डिस्क्राइब करेंगे। चेस्ट एक्सरे हम क्यों करवाते हैं? चेस्ट एक्सरे हम करवाते हैं पेशेंट की लंग्स की कंडीशन देखने के लिए कि पेशेंट के लंग्स में फ्लूइड वगैरह या कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गई। फिर उसके बाद जब CT स्किन कराते हैं तो CT स्किन में जो चीज़ें रह जाती हैं उसको वाज़िया तौर पे डिटेल्स में देखने के लिए हम CT स्किन कराते हैं। फिर ब्लड टेस्ट, जो रूटीन के टेस्ट होते हैं ब्लड के, वो कराते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट CBC में देखते हैं कि पेशेंट के इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन को देखते हैं ताकि किस तरह के एंटीबायोटिक वगैरह लगा सके। और उसके बाद हम ब्रोंकोस्कोपी कराते हैं। ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक ट्यूब डाली जाती है, ट्यूब के साथ कैमरा अटैच होता है। कैमरे में जो कि ट्रेकिया में डाला जाता है, ट्रेकिया में एयरवे देखते हैं कि एयरवे कंजस्टेड तो नहीं, क्लियर है, ये चीज़ें ये देखने के लिए हम करवाते हैं। उसके बाद ABGs देखते हैं। ABGs में हम देखते हैं कि पेशेंट की आर्टरीज से ब्लड लेके वो ABGs कराया जाता है और उसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट के ब्लड में गैसेस वगैरह, उसको ऑक्सीजन कितनी मिल रही है। स्पूटम कल्चर कराते हैं। स्पूटम कल्चर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चलाते हैं कि उसमें कौन सा ऐसा बैक्टीरिया, कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके लिए अगर हमें पता चलेगा फिर उसके लिए हम कौन सी एंटीबायोटिक दे सकेंगे। आगे हम सर्जिकल इंटरवेंशन, पेशेंट की सर्जिकल इंटरवेंशन के बारे में बताएंगे कि पेशेंट को किस तरह इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। उसके बारे में हम उसकी पर्सनल फिज़िकल हाइजीनिंग के बारे में बताएंगे, जिसमें ओरल हाइजीनिंग आता है, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह आता है कि पेशेंट किस तरह प्रिवेंट कर सकता है इन्फेक्शन के नमूनिया के इन्फेक्शन से और नर्सिंग केयर एंड मैनेजमेंट। रिश्योर द पेशेंट को रिश्योर करना है, तसल्ली देनी है, काउंसलिंग करनी है। इनकरेज फॉर हेल्दी डाइट, अच्छा और हेल्दी खाना खाने के लिए पेशेंट को बार बार कहना है, इनकरेज करना है। इनकरेज फॉर फ्लूइड्स, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। उसको हम पानी पीने की एडवाइस करेंगे कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि इनटेक और आउटपुट आपका अच्छा रहे। गेटिंग मोर रेस्ट पेशेंट को हमने बताना है कि आपने रेस्ट ज़्यादा करना है, आराम ज़्यादा करें और उस पोजीशन में करें जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं। ऑक्सीजन इनहेलेशन थेरेपी, ऑक्सीजन ज़रूरत होने के ऊपर लगानी है। जब पेशेंट को ज़रूरत हो SOS आप ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पेशेंट को। और पेशेंट को हम बताएंगे कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज फॉर सेवरल टाइम, इट हेल्प्स टू लूसन म्यूकस। और दिन में कई बार गहरा सांस लें ताकि सिक्रीशन और बलगम आपकी बाहर निकले। चेस्ट फिजियो 6 to 8 आवर्ली और एज पर नीडेड, दिन में 6 से 8 दफ़ा चेस्ट फिजियो करना है, या जब ज़रूरत हो टाइमली न्यूबलाइजेशन, वक्त से न्यूबलाइज करना है। और पेशेंट को एडवाइस देंगे कि हम जो भी काम करते हैं हमें डॉक्यूमेंट करना है और डॉक्यूमेंटेशन के बगैर हमारा काम एक्सेप्टेबल नहीं होता। और अब हमारे ग्रुप के मेंबर शहजाद इस टॉपिक को कंटिन्यू करें।
Complication of pneumonia, lung abscess, lung carcinoma. Lung abscess क्या होता है? Lung abscess is a localized lesion in the lung containing pus and necrotic tissue that collapse and form cavity or pocket in the lungs. Lung abscess में क्या होता है? एक पॉकेट बन जाती है जिसमें पस कलेक्शन होती है और लंग के सेल जो है नेक्रोटिक होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स डेड होना. इटियोलॉजी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. इटियोलॉजी क्या होती है लंग एब्सिस की? वजूहात क्या होती हैं, क्यों होता है लंग एब्सिस? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई, एस्पिरेशन ऑफ ओरोफ्रेंजियल और गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सेप्टिक एम्बुलाई, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, क्यों, क्या साइन सिम्टम हमें नज़र आते हैं लंग एब्सिस में? कफ, फीवर with shivering and night sweating, foul smelling, purulent sputum, dyspnea, weakness, blood in sputum, pleuric chest pain, finger clubbing. फिंगर क्लबिंग भी हो जाती है और नेल क्लबिंग भी, दोनों आपको डायग्राम में नज़र आ रही होंगी. डायग्नोस्टिक ओवेल्यूशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या करवाते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम कल्चर. मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक, चेस्ट ड्रेनेज, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इफ़ेक्टिव कफिंग, सर्जिकल ट्रीटमेंट, डाइट, इंक्रीज प्रोटीन डाइट, इंक्रीज करेज डाइट, ऑरल हाइजीनिक. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. ऑरल हाइजीन में भी मेन पार्ट है, बहुत ज़रूरी है लंग एब्सेस में. नर्सिंग मैनेजमेंट में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी, deep breathing and coughing exercise, proper nutritional intake, diet high and protein and calories is encouraged. इमोशनल सपोर्ट हम इनकरेज करेंगे प्रोटीन डाइट और कैलोरीज डाइट के लिए, क्योंकि लंग एब्सिस हो गया तो बहुत ज़रूरी होती है डाइट का भी प्रॉपर होना. कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फ़ाइट करना होता है हमारे बॉडी में. जो जरासीम बैक्टीरियाज आ जाते हैं उनकी फ़ाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. Patient education. Educate the client and family members about dressing change, deep breathing and coughing exercise every 2 hourly during the day. Postural drainage and percussion techniques are taught to caregiver so that lung secretion can be removed. Counseling for nutrition. पेशेंट और उसकी फैमिली को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. जो भी उसका प्रोसीजर हुआ है उसके बारे में एक एक चीज़ सब हमें एक्सप्लेन ज़रूर करनी चाहिए ताकि उन्हें अवेयरनेस हो इस बारे में. लंग कार्सिनोमा में क्या होता है? लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ इन टिश्यू ऑफ द लंग. The growth may lead to metastasis, which is the invasion of adjacent tissue and infiltration beyond the lungs. लंग कार्सिनोमा में क्या होता है? अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रही होती है. हेल्दी लंग कैसा होता है आपके सामने डायग्राम में है, और जब लंग कार्सिनोमा हो जाता है तब कैसा होता है लंग, दोनों डायग्राम को देखें आपको क्लियर हो जाएगा. इटियोलॉजी कॉजेज़, क्यों होता है लंग कार्सिनोमा, वजूहत क्या हैं इसकी? लंग कार्सिनोमा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लंग कैंसर इज़ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ तम्बाकू स्मोक. जो लॉन्ग टर्म से तम्बाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें मोस्ट कॉमन हमें उनमें दिखाई देगा लंग कार्सिनोमा. जेनेटिक फैक्टर्स, एयर पोल्यूशन, पैसिव स्मोकर, सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं पैसिव स्मोकर. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, हमें क्या नज़र आएगा उनमें, साइन सिम्टम उनके क्या होंगे? कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हॉर्सनेस, ब्लड इन द स्पूटम, वेज, चेस्ट पेन होगा. डायग्नोस्टिक ओवेल्यूशन, हम कैसे ओवेल्यूट करेंगे, कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे? एक्सरे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी मीन्स सीटी स्कैन, बायोप्सी, एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज. टीएनएम क्राइटेरिया होता है ट्यूमर साइज, लोकेशन एंड डिग्री इन्वेजन हम देखते हैं. एन फॉर रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं. एम फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखते हैं. स्टेजेस क्या है ट्यूमर की? लेस देन 3 सेंटीमीटर, सेकेंड में लेस देन 3 सेंटीमीटर विद लिम्फ नोड इन्वॉल्व सेम साइड, थर्ड में
tumor separate nearby tissue and lymph node involve. Extensive tumor involve many organs. Number 4, distant metastasis surgery required but poor prognosis. मैनेजमेंट हम इसमें क्या करेंगे, जब लंग कार्सिनोमा हो जाता है उसकी मैनेजमेंट हमें कीमोथेरेपी रेडिएशंस करवाते हैं. प्रिवेंशन क्या है कि टू स्मोक, प्रिवेंट फ्रॉम इरिटेंट. थैंक यू. Modes of transmission. Anybody know that pneumonia is transmitted disease? Pneumonia is transmitted when a germs from the body of someone with pneumonia spread to another person. This can happen in a variety of ways, including inhaling the infection. This can occur when a person with pneumonia cough or sneeze to another person, inhale the infected particles. अब ये कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन नमूनिया के किस तरह से होता है. सबको पता है कि नमूनिया जो है वो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. तो एक पर्सन जो कि नमूनिया के साथ है वो जब खांसता है और छींकता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरा पर्सन होता है वो इजीली नमूनिया ले सकता है अपने अंदर. जो भी जर्म्स उसके होंगे वो उसके अंदर आसानी से जा सकते हैं, तो वो पर्सन भी जो है नमूनिया कॉज कर जाएगा. अब हमने ये देखना है कि प्रिवेंशन किस तरह की जाती है. तो प्रिवेंशन फ्रॉम नमूनिया. वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, स्पेशली आफ्टर यू गो टू वॉशरूम एंड बिफोर यू ईट. ईट राइट विद प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, fruit and vegetables. Do exercises, get enough sleep, quit smoking, active or passive. Stay away from sick person if possible. अब ये कि सबसे पहले तो हमें हाथ धोना जो है वो ज़रूरी है. तो हाथ हमने बाकायदगी से धोने हैं. जब भी हम वॉशरूम होकर आएँ, टॉयलेट यूज़ करें या कुछ खाने पीने लगे तो लाजमी हाथ धोने हैं. अच्छा और हेल्दी खाना खाना है जिसमें जूसेस हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं और वेजिटेबल हो सकती है. बाकायदगी से एक्सरसाइजेस करना है. नींद जो है अपनी पूरी करनी है, मतलब जितनी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है 6 से 8 घंटे लाजमी सोना है. स्मोकिंग जो है वो बिल्कुल क्विट करनी है, भले वो एक्टिव हो या पैसिव हो, भले आप खुद कर रहे हैं या आपके साथ वाला कोई कर रहा है. स्टे अवे फ्रॉम सिक पर्सन. बीमार लोगों से दूर रहना है, फासला बनाए रखना है जितनी हद तक पॉसिबल हो सके. तो ये थी हमारी ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन नमूनिया से, हमें किस तरह बचना है और नमूनिया जो है ट्रांसमिट होने के क्या क्या ज़रिए हैं.